Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, we started, first of all, it's week number 8. We did a major part of the week number 8 in the last lecture. We started with the week number 8 with foreign direct investment. I discussed that investment is when you do not think about the present, you sacrifice your present for future. An investment, you think that what should I do right now is to sacrifice what I want to have right now. Instead of that, you want to have something in the future. So when you sacrifice today, you get something tomorrow. Same is the case an investment that you always focus on the future. You just give or forward your fund for profit to be have in the future. An investment, we we may invest in within the country, within the boundaries of the country, but mostly in this digital era, most of the people, they you start from your home or from your home country, but if it gets popularity with the passage of time, you need and you are forced to think to expand your business. And when you start thinking about expanding your business, you need to think about the foreign direct investment. So foreign direct investment, you cross the boundaries and you just invest in other foreign countries. Types of foreign direct investment. Foreign direct investments are commonly categorized as being horizontal, vertical, or conglomerate. So we have mainly 3 types: horizontal, vertical, and conglomerate. Moving forward, the first one, horizontal direct investment, refers to the investor establishing the same type of business operation in a foreign country as it operates in its home country. For example, a cell phone provider based in the United States opening stores in China. हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो टाइप है हॉरिजॉन्टल ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, जिसमें हम वही चीज फॉरेन कंट्रीज में भी खोलते हैं या इनिशिएट करते हैं जो कि हम अपने होम कंट्री में करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक सेल फोन है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आईफोन है, तो आईफोन यूनाइटेड स्टेट्स में जो कंपनी काम कर रही है, वही कंपनी इधर आती है पाकिस्तान में, और वही सेल फोन जो यूएसए में तैयार होते हैं वो इधर ही वो तैयार करने शुरू कर जाते हैं या इधर ही स्टोर्स खोलते हैं और उसी में वो बेचते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हॉरिजॉन्टल इसको इसलिए बोलते हैं कि ये सेम बिजनेस होता है, मतलब जो बिजनेस आप उधर करते हो वही बिजनेस उसी प्रोडक्ट का आप इसी कंट्री में करते हो. You do not think to invest your fund in different product. What you think is to invest the fund in the same product that we have launched in our home country. दूसरा एग्जांपल इसका क्या है कि फॉर एग्जांपल टोयोटा कार्स जापान में जो तैयार होती है, वही टोयोटा कंपनी इधर पाकिस्तान में भी है, तो वो क्या करती है, वही कार्स इधर भी तैयार करती है. सो she has invested her fund in the same product. So horizontal एक ही लेवल पे चल रहे. They do not invest in different product.
So before moving forward, Rubab, if you have any question, you can ask. No, sir. Okay. Vertical investment, foreign direct investment or vertical investment is one in which different related business activities from the investor's main business are established or required in a foreign country. Raw materials required for the manufacturing company to make its products. वर्टिकल इसको इसलिए बोलते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एक लेवल चल रहा होता है, वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक लेवल में मूवमेंट करता है. वर्टिकल इसको इसलिए बोलते हैं कि जो बिजनेस जो कंपनी करती है उससे थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाती है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो होता है वो रिलेटेड होता है. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो कि गाड़ियाँ तैयार करती है, जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी है ये टोयोटा कार्स की. टोयोटा कार्स में बहुत सारे एक तो उधर वो तैयार करते हैं, लेकिन टोयोटा कार वाले ये सोचते हैं कि इस गाड़ियों में जो चीज़ें यूज होती हैं वो तो कुछ हम आउटसोर्स भी करते हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल मेन बॉडी तो इधर तैयार होती है, इंजन वगैरह, हम टायर्स आउटसोर्स किए उन्होंने कोई दूसरी कंपनी में. तो वो करते क्या है, वो ये करते कि सेम एक और ब्रांच खोलते हैं, एक और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसी कंपनी बनाते हैं जो कि टायर्स वो मैन्युफैक्चर करें. तो टायर्स मैन्युफैक्चरिंग इज not unrelated product, it is a related business with manufacturing of cars. चूंकि कार टायर इज अ पार्ट ऑफ अ कार, तो इसलिए इसको हम रिलेटेड बोलते हैं. दूसरे अगर हमें एग्जांपल दे दूं, यूनिलीवर एक बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने टूथपेस्ट वगैरह, लेकिन इनके टूथब्रश भी हैं. अच्छा, अभी टूथपेस्ट का तो वो मेनली कर रहे थे, और प्रोडक्ट्स में भी हैं, ज्यादातर उनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स हैं. तो टूथपेस्ट और टूथब्रश, अगर पहले तो वो टूथपेस्ट कर रहे थे, अभी इन्होंने रिलेटेड प्रोडक्ट भी इन्वेस्टमेंट उसमें की है, दैट इज द टूथब्रश. तो दोनों चूंकि रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं. अब टूथपेस्ट और टूथब्रश तो अगर इनका नेचर देखे वो तो डिफरेंट है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट रिलेटेड है. Rabab, if you have any question related to this slide, you can ask. No, sir. Okay. The third one is conglomerate type of foreign direct investment is one where a company or individual makes a foreign investment in a business that is unrelated to its existing business and its home country. इसका मतलब conglomerate type of foreign direct investment का मतलब ये है कि ये जो कंपनी अभी लॉन्च करने जा रही होती है वो टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट, वो रिलेटेड नहीं होता है, वो अनरिलेटेड होता है. फॉर एग्जांपल, आप कारोबार कर रहे हैं, अभी वॉल्स वाले आइसक्रीम, इनका काफ़ी उसमें मशहूर है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में. वॉल्स वाले क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर या एलईडीज एलसीडीज में वो इन्वेस्टमेंट करें, सो इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग और मेकिंग आइसक्रीम्स. सो इस किस्म के कॉन्ग्लोमरेट टाइप बिजनेसेस जो होती है वो थोड़ी सी कम है सही, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी कम है. ज़्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं वो तो आइदर ये जो है वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में इन्वेस्टमेंट करते हैं. कॉन्ग्लोमरेट टाइप बिजनेस काफ़ी कम होता है, और इसकी मेन वजह ये होती है कि देखिए अभी फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कुर्तुबा यूनिवर्सिटी पहले स्कूल से फिर कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी. अगर इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया और उसके बाद सोचा कि नहीं हमने एक मार्केट भी बनाने से, मार्केट्स में हमने बनाने इन्वेस्टमेंट करनी, या गाड़ियों का कारोबार हमने शुरू करना है,
तो देखिए स्कूल का उनका जो एक्सपीरियंस था दैट वाज टोटली डिफरेंट। अगर वो नई चीज में आते तो वो डिफरेंट था। तो हर चीज के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी चीज को आगे बढ़ाया, स्कूल फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी। सो दिस इज द कॉन्ग्लोमरेट टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें कंपनी टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट स्टार्ट करती है जो कि अनरिलेटेड है। वर्टिकल में और कॉन्ग्लोमरेट में यही डिफरेंस है कि वर्टिकल में आप रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लेकिन कॉन्ग्लोमरेट में आप टोटली डिफरेंट। जिस तरह मैंने आइसक्रीम का और एलईडीज एलसीडीज का मैंने आपको बता दिया, तो मतलब दीज बोथ आर टोटली डिफरेंट। अच्छा, तो इसमें मैं अगर पहले स्लाइड पे मैं दोबारा जाऊं तो हॉरिजॉन्टल में रिस्क का फैक्टर जो है वो इंतहाई कम होता है। ठीक है, कम इसलिए होता है कि आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका होता है। चांसेस कम होती है कि आप जो है वो लॉस करें, लेकिन चूंकि रिस्क कम है, रिस्क और प्रॉफिट भी कम होगा। जो भी चीज हो दुनिया में, ये आप एक प्रिंसिपल है कि जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और जहाँ पे रिस्क कम होता है तो प्रॉफिट भी कम होता है। वर्टिकल में ये होता है कि इसमें भी रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के मुकाबले में इसमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिलेटेड है। इस वजह से इसमें कंपेरेबल टू कॉन्ग्लोमरेट वर्टिकल इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है, हॉरिजॉन्टल के मुकाबले में ज्यादा होता है वर्टिकल में, और कॉन्ग्लोमरेट के उसमें मुकाबले में वर्टिकल इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है। जाहिर सी बात है, जब रिस्क कम होता है यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा। कॉन्ग्लोमरेट में चूंकि आप यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट, so risk is higher and there are chances कि आप जो है इसमें प्रॉफिट भी कम हो। फॉर एग्जांपल, आईफोन वाले तो ज्यादातर वो करते हैं उसमें मोबाइल फोन्स में। अगर आईफोन वाले जो है वो गाड़ियां भी तैयार करना शुरू करें, so there is a big chance of getting a lot of profit, but in the same case there is a big chance of loss as well. So these horizontal, vertical, and conglomerate are the different types of the foreign direct investment. That's all for today, and it is the end of week number 8, and inshallah we will continue week number 9 next Friday, inshallah. And if you have any question, any query, you have my contact number and email ID, so you can ask.